Good morning, 11th standard. Today we are going to discuss about another theory of which explains the structure of the molecules, and that is valence bond theory. In the previous one video, we discussed about the VSEPR theory, which is valence shell electron pair repulsion theory, and now we are going to discuss about the valence bond theory. ठीक है बेटा? So VSEPR theory में हमने shapes of molecules देखे depending on the central atom, whether the central atom is having a lone pair or it is not having a lone pair. So on the basis of that, the shapes varies, and we studied about the different type of molecules and the different shapes. So now we are going to discuss about the other theory which explains the structures of molecules. And as all of us we know that Lewis जो थे, he helped in writing the structure of molecules, but basically he was failed to explain the formation of a chemical bond. And साथ में उन्होंने ये भी रीजन नहीं दे पाए लुइस का जो अप्रोच थी मॉलिक्यूल्स के लिए, that difference of why there is a difference in bond dissociation enthalpy and bond length. Why there is a difference in bond dissociation enthalpy and bond length, like hydrogen है या F2 है. अब जैसे H2 है, there is a single bond HH. F2 है, there is a single bond FF. But their bond length and their bond enthalpy both are varied, even both of these two molecules having a single covalent bond which is formed by the sharing of electron. So as well as the Lewis concept do not give any do not give any even explanation about the shapes of polyatomic molecules. So similarly, जो VSEPR theory थी, it also gives the geometry of simple molecules, but it do not explain them. ठीक है, और इसकी भी कुछ क्या है, लिमिटेड एप्लीकेशंस है. तो इन लिमिटेशंस को VSEPR थ्योरी और लुईस स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस को क्रॉस करने के लिए हमने कुछ क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस्ड हुए, और जिन्हें हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सप्लेन किया. So valence bond theory जो थी, that was introduced by Hadler and London, and it was further developed by Pauling. So valence bond theory जो थी, basically it depends on the knowledge of atomic orbitals. कि atomic orbitals का knowledge होना, electronic configurations, कैसे atomic orbitals overlap कर रहे हैं एक दूसरे पे, hybridization atomic orbitals की क्या क्या होगी. In all these aspects, valence bond theory depends, or we can say that valence bond theory that can be discussed in terms of qualitative and non-mathematical treatment only. Also, I'm going to start explaining you what is basically the valence bond theory. So उन्होंने सबसे पहले, because hydrogen molecule is the simplest one molecule which is formed, so they have taken an example of a hydrogen molecule in which they consider two hydrogen atoms, like that is A and B. And उन्होंने ये कहा कि ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स है, they approach each other, which A atom is having a nuclei Na और B एटम का न्यूक्लियाई क्या होगा, Nb होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन दोनों हाइड्रोजन एटम के वो Ea एंड Eb होंगे. समझ आ गई? दो हाइड्रोजन एटम, एक का इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई Ea एंड Na, और दूसरे का इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई Eb एंड Nb से रिप्रेजेंट होता है. तो उन्होंने कहा व्हेन दीज टू एटम्स आर एट लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, ये जो दो बॉल्स है, if they are at large distance from each other, then there is no interaction between them. बहुत दूरी पे हैं अगर ये suppose दो atoms है, and if they are very far apart from each other, then there is no force of attraction in between them. But as they approaches each other, तो यहाँ से अब धीरे 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 क्या कर रहे हैं, they start approaching each other, they come closer together one another, then new attractive and repulsive forces begin to operate. जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे या बेटा वो बताइए किसके बीच में होंगे,
अपोजिट चार्जेस। तो Na और Ea और Nb और Eb के बीच में होगा पहला अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ, एज यू कैन सी हियर, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। ठीक, एंड Na एंड Eb एंड Eb एंड Nb, इनके बीच में भी होगा। सो दिस इज अनदर वन अट्रैक्टिव फोर्स। वेयर एज अगर रिपल्सिव फोर्स की बात करते हैं तो ये जो होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे और दोनों के न्यूक्लियाई आपस में रिपेल करेंगे। तो रिपल्सिव फोर्स भी कितने हुए, दो, Ea, Eb, Na, Nb के बीच में ना। अगर हम अट्रैक्टिव फोर्स की बात करते हैं, जस्ट हैव अ लुक हियर, अगर हम अट्रैक्टिव फोर्स की बात करते हैं इस फिगर में देखिए बेटा, तो देयर आर द ओल्ड फोर्सेस। ठीक है, देखो ये हाइड्रोजन, ये आपका Ha लिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम और A एटम, ये हाइड्रोजन B एटम। ठीक है, और ये एक A हाइड्रोजन एटम है, ये B हाइड्रोजन एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है। देखो अभी अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात हो रही है सर, तो इनमें फोर्सेस में न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन A is attracted towards the Eb। पुराने फोर्सेस क्या थे, सिर्फ एक ये फोर्स था पुराने वाला, है ना, मैं बताती हूँ। जो ओल्ड फोर्स है वो न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए के बीच में, न्यूक्लियाई ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच में। लेकिन जो नया फोर्स बना है वो आपका इसके बीच में बना है, न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी और न्यूक्लियाई ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। So these are the old forces and new forces. Similarly, in this one case भी repulsive में आपका किस किस के बीच में रिपल्शन आ गया, ये आया आपका इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और बी, दोनों हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और दोनों हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में, इन्हीं में आएगा आपका। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि इनका एक्सप्लेनेशन ये कहता है बच्चे कि अगर हम बात कर रहे हैं आपके इसकी एक्सपेरिमेंटली बात करते हैं, तो इन एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस जो था दैट इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, जो माने अट्रैक्टिव फोर्सेस जो थे, जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस थे वो ज्यादा थे कंपैरेटिवली टू द न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, न्यू रिपल्सिव फोर्सेस, और इसीलिए दो एटम जो थे एट लास्ट क्या हुए, रिजल्टेंट अप्रोच ईच अदर। एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी दोनों की। एंड ऑब्वियसली अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी बेटा जहां पर कि नेट फोर्स ऑफ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कौन सा, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो जो होगा वो बैलेंस हो रहा होगा किस किस के बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड सिस्टम विच एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी। सो एट दिस स्टेज हम ये कहें तो इस स्टेज पे हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो क्या हो गए होंगे, बॉन्डेड हो गए होंगे एक दूसरे के साथ, एंड दैट इज फॉर्मिंग अ स्टेबल मॉलिक्यूल दैट इज H2, जिसकी की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 74 पिकोमीटर। कितनी हो, 74 पिकोमीटर हो जाएगी। एंड सिंस द एनर्जी इज योर गेट्स रिलीज्ड, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो obviously whenever there is a bond formed the energy is released and the hydrogen molecule that's why is more stable than the isolated hydrogen atoms, and the energy which is released during the bond formation of H2 molecule that is known as the bond enthalpy which is corresponding to minimum in the curve depicted। ये देखो यहाँ पे, अब मैं ये दिखा देती हूँ आपको, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है वो, ये देखो बेटा, ये एनर्जी इन किलो जूल है और ये दो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियर डिस्टेंस है। अगर आप कहें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फार अवे है। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी कम है, व्हेन दे कम क्लोजर टुगेदर वन अनदर, सो एनर्जी क्या हो गई आपकी, एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये देखो एनर्जी ये जीरो है, और जीरो कहाँ पर है, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे। ठीक है, यहाँ ये बॉन्ड लेंथ आ गई हमारी कितनी, ये बॉन्ड लेंथ है हमारी 74 पिकोमीटर, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ
माने बिल्कुल जब अपार्ट है, जब सबसे पास में आ गए बेटा तो देखो बॉन्ड लेंथ बिल्कुल कम हो गई, और वो कितनी है 74 पिकोमीटर। ये थोड़ा सा दूर गए तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, ये थोड़ा दोनों हाइड्रोजन एटम और दूर चले गए तो बॉन्ड लेंथ जो हो गई वो क्या हो गई, और ज्यादा इंक्रीज हो गई। एंड एनर्जी ऑल्सो becomes lowest, या हम कहें तो मिनिमम, मिनिमम हो गई ना when the both the molecules come closer together, जब वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उसके बाद एनर्जी ऑल्सो ग्रेजुअली गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये भी क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सो हमने यही कहा कि जब आपका क्या बन रहा है, जब आपका बन रहा है मॉलिक्यूल, बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में, सो एट दैट टाइम पीरियड द एनर्जी विल बी द मिनिमम। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए। so this is all about your we can say बैलेंस बैंड थ्योरी। ठीक है, अच्छा बच्चे, यहीं पे मिनिमम ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट that we are going to do in the next one। ठीक है, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, that is a simple one, we have studied about the valence bond theory। so valence bond theory हमें कुछ नहीं बताती, ये हमें कहती है कि दो एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल के तब पास आएंगे और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जब उनकी बॉन्ड एनर्जी लीस्ट हो, और जब उनका जो न्यू फॉर्मेशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस है दैट इज मोर देन द न्यू repulsive forces। ठीक है बेटा, so thank you to all of you।